ए और बी जो है, और इनिशियल गैस. So usually first classical guess is that you take fx equal to 0. That equation is given. So try to fit x equals to like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Okay. And then bracket the root. And secondly, you can use graph, as someone said. So use graph to take an idea. For example, let us say I have an equation like this: x minus cos x equals to 0. This is my fx. But this function involves two elementary functions. One is x and another one is cos x. And I know the graph of both function. Okay. But I can write this equation as x equal to cos x. लिख सकते हो ना? When x equal to cos x, this difference will be 0. And if I look at the graph of two functions, like one function right left hand side, this is f1x, this is f2x. If you have this situation, then try to plot both on same graph. Like cos x मैं एक branch ही plot कर रहा हूँ, ठीक है? This is from minus pi by 2 plus pi by 2. This is one branch of cos x, and I know the graph of x. अब अगर आप दो देखोगे फंक्शन, तो एक लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y इक्वल टू x, एंड सेकंड क्या है? So we have two graphs, y equal to x and y equal to cos x. And I know how to plot y equal to x, a line passing through the origin. So when they become equal, fx become 0. तो इक्वल कब बन रहे हैं दोनों ये? Look at the graph of cos and x. Their intersection, their cutting point. And what is the cutting point? This one. So this is my root. Root of fx. Or I can say this is the root of x minus cos x equals to 0. And I know where is this point. You can check pi by 2. What is pi by 2? 3.14 divided by 2. So this is approximately 1.5 something. And you can see. So you can also take initial guesses like this. So take a equal to 0. For example, take b equal to 1.5 and apply bisection. Okay, you जरूरी नहीं कि हम इंटीजर ही लें 0 1 2 3. यू कैन टेक एनीथिंग, यू कैन. तो इसमें आप चेक करके देख लो, आप जीरो फिट करो. So cos 0 1 होता है, this will be negative. Fit 1.5, this function will become positive, x minus cos x. Okay, so from these, and there is no numerical method which tells us that how you take initial guesses. Okay, to start, to get an idea, we don't have any numerical method. Yeah, but if you have initial guess, then numerical method provide you answer with good accuracy. And finding initial guesses, sometime it can be difficult. Okay. सर, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया क्यूबिक वाला, हाँ जी. उसमें हमें सिर्फ एक रूट मिल रही है ना उन तीनों में से? हाँ, एक बार में इटरेटिव मेथड, एक बार में एक ही देंगे ये. ठीक है. अगर तीन रूट हैं, तो सर ये तो जैसे मैंने अब ये, पता नहीं हो सकता दो कॉम्प्लेक्स हों, तो अगर मान लो ये तीन रूट हैं, ठीक है, एक यस ये सर. है, एक ये है, एक ये है, तो फर्स्टली यू ब्रैकेट दिस वन, ओके. then you bracket this one to find this one, then you bracket this and this. So you have to find three roots separately. बट इसमें एक दिक्कत तो आपकी हो जाएगी, कई बार अगर एक से ज्यादा रूट हैं, अगर आप बड़ा इंटरवल लोगे, मान लो आपने ए यहाँ लिया और आपने बी ये लिया, तो आपको लगेगा कि फंक्शन पॉजिटिव है, ए पे भी पॉजिटिव है, बी पे, बट देयर आर टू रूट्स. So to find single root, firstly you have to bracket that one root. Okay, so one by one निकालने हैं आपने.
इकट्ठा नहीं मिलेगा कभी। सो ट्राई टू टेक ए एंड बी क्लोज टू ईच अदर सो दैट you are not skipping, and you are not adding two roots. Okay, so try to take तो A and B. सही आंसर तो ऐसे वेरी कर सकते हैं ना, लाइक किसी ने और इंटरवल नेक्स्ट वाला ले लिया, उसमें वो वाली रूट आ रही है। हाँ, वो हो सकता है। अगर आप वो इनिशियल गैस जिसके पास लोगे, मान लो आपने ये लिया तो आपको ये रूट मिलेगा, दूसरे ने ये लिया तो हाँ उसको जी दूसरा। सर। दैट डिपेंड ऑन इंटरवल बोस। ठीक है। राइट सर। सर हम लोग को क्वेश्चन में कितने रूट निकालने हैं? एक रूट निकालना है यूजुअली एक इंटरवल लेके। एक इंटरवल एक रूट, ठीक है। ठीक है। एंड इन मैटलैब यू कैन डू दीज थिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट जो मेथड है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन with the motivation of this example, x equal to cos x. And second iterative method in this category, that is known as fixed point method. Fixed point method. And this is also a very simple method to find root of nonlinear equation. For example, I have an equation like this, fx equal to 0. For example, I have x equal to cos of x, I can say x minus cos x equal to 0. And in fixed point method, for example, I can write this equation equal to x equal to cos x. लिख सकते हैं ना। तो फिक्स पॉइंट जो, अब फिक्स पॉइंट हम किसको बोलते हैं, नाम से क्लियर, फिक्स्ड पॉइंट। So look at this function cos x. You are putting input x and आउटपुट इज आल्सो x। ठीक है, तो cos cos में एक x ऐसा होगा, आप x पे cos लगाओगे तो आपको आंसर भी x मिलेगा, यानी कि जो आपने इनपुट दिया है दैट इज आल्सो इक्वल टू आउटपुट। तो यानी कि ये x फिक्स हो गया। सो x इज फिक्स अंडर दिस फंक्शन cos। तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट, अब मान लो आप कैलकुलेटर लो, आप हम आगे एग्जांपल डिटेल में करेंगे, आप कैलकुलेटर लो, फंक्शन रखो कॉस। ओके, कॉस रेडियन मोड में रखो उसको, रेडियन डिग्री नहीं है, रेडियन। ठीक है, आप कॉस 1 निकालो, कॉस 1 लगभग आता है 0.5403 कॉस 1। फिर जो आंसर आया उस पर फिर कॉस लगा दो दोबारा से, देन कंप्यूट कॉस 0.503, फिर इसका आंसर आता है 0.85 समथिंग। फिर जो आंसर आया उस पर फिर कॉस लगा दो, बार बार कॉस लगाते जाओ। उस टाइम के बाद क्या होगा, एक नंबर आएगा आपके पास, एक नंबर आएगा 0.73, लगभग है 0.73918। इस पे कॉस लगाओगे तो आपको आंसर भी सेम मिलेगा लगभग। ठीक है, तो ये पॉइंट है कॉस का फिक्स्ड पॉइंट। और अगर हम पिछला ग्राफ देखें, सो दिस इज द पॉइंट, दिस वन। इस पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू कॉस एक्स। आपने इनपुट पे x पे कॉस लगाया तो आउटपुट इज आल्सो x। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट क्या है, एक फंक्शन है आपने आपके पास, हम फिक्स पॉइंट को हम दोनों में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फंक्शन जिसका रूट निकालना है उसको मैं कहूंगा fx। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू g ऑफ x। जैसे x इक्वल टू g क्या आपका cos x है। तो अब फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम का रूट से क्या रिलेशन है, पहली बात तो जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर लिखा है, अब आपका एम क्या है, आपने इसका रूट निकालना है x माइनस कॉस एक्स का। तो आप उसको f को इस फॉर्म में लिख लो, x इक्वल टू कॉस एक्स, इसका फिक्स पॉइंट निकाल लो। मतलब जब cos और x इक्वल होंगे, जैसे मैंने फिक्स पॉइंट निकाला 0.73, तो वो fx का रूट है नहीं।
So we have root finding problem. Root finding problem. Fx equal to 0. So we write it as x equal to gx in many ways. तो फर्स्ट तो मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ, मान लो मैनी वेज में कह रहा हूँ, तो लिखना फिक्स नहीं है। मान लो आपके पास ये इक्वेशन है fx equal to 0, so you can multiply, let's say I am multiplying with -2, so -2 fx is also 0, as an example I am saying. Now add x on both sides, add x here, add x here, so I can take this g. Okay, after that we will study a result which says that which g you can take. Okay, so I'm just showing the example, so you can always write in that way. So for example, एक fx है, आप कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, fx इक्वल टू 0 है तो सी एफ एक्स भी 0 होगा। अब दोनों साइड में x ऐड कर दो, x प्लस सी एफ एक्स इक्वल टू x. So in many ways you can write it this. अब आप रूट फाइंडिंग में मेथड इटरेटिव है, इटरेशन आप कैसे करोगे? फिक्स पॉइंट iterations. So what we do, firstly we write fx equal to 0 as x equal to g of x. ठीक है, फिर आपने क्या करना, टेक इनिशियल गैस. अब इसमें 1 ही चाहिए आपको, टेक इनिशियल गैस x0. एक इनिशियल गैस लो, जैसे मैंने कहा कि कॉस का फिक्स पॉइंट निकालना है, यू कैन स्टार्ट विद एनी पॉइंट, 1 से शुरू किया मैंने, बट होना वो रूट के आसपास ही चाहिए. जैसे आप बाइसेक्शन में करते थे, आप ए बी लेते थे ना, ए और बी, आप एक ले लो ए, ठीक है, टेक ए और टेक बी एनी. सो टेक 1 इनिशियल गैस. फिर इटरेशन आपने कैसे करनी है, आई एम राइटिंग इट ऑन नेक्स्ट पेज. आप उस पर जी लगा दो, जी में वो x0 डाल दो, जो आंसर आया से दिस इज x1. ठीक है, जो आंसर आया आप उसको फिर डाल दो, से दिस इज x2, और इसको रिपीट करते दो. सो इन जनरल वी राइट फिक्स पॉइंट इटरेशन एज xn plus 1 इक्वल टू g of xn, n इज 0 1 2 3 एटसेट्रा. इसको आपने रिपीट कर, ये लास्ट वाला दोबारा बता दीजिए सर. आपने इनिशियल गैस लिया, ठीक है, पहले इक्वेशन को लिखना है x इक्वल टू जी एक्स फॉर्म में. अभी इसके मैं वे डिस्कस करूंगा कैसे लिखना है, ठीक है, एक मैंने एग्जांपल बता दिया. आप एक इनिशियल गैस लो x0, ठीक है, जी में फिट कर दो x0, जो आंसर जो भी कुछ मिलेगा आपको उसको आप x1 कह दो. फिर x1 पे x1 डाल दो जी में, जो भी आंसर आएगा उसको आप x2 कह दो. इसको रिपीट करते जाओ, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अब स्टॉप भी करना इटरेटिव है, स्टॉप आप कब करना है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो xn plus 1 है और xn है, इनका डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा. तो आफ्टर सम टाइम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन यू स्टॉप. ठीक है, दो को माइनस करते जाओ, फिर आपने रुक जाना है. तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मेथड बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स and then we will talk about its error, etc. So first example I am taking that I said in the beginning. So take x equal to cos x. तो प्रॉब्लम कैसे होगा, सो क्वेश्चन इज सेम एज इन द बाइसेक्शन एंड फार्मूला इज आल्सो सेम, वन लाइन फार्मूला है x इक्वल टू जी एक्स. ओके, इटरेटिव है लाइक बाइसेक्शन, यू हैव टू पुट ए स्टॉपिंग क्राइटेरिया, यू कैन कंपेयर टू सक्सेसिव इटरेशंस. हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा, जी कैसे लिखना है ये थोड़ा सा दिक्कत है. इफ आप अगर आप जी लिख लोगे उसके बाद मेथड एप्लीकेशन करना बहुत ही आसान है, जस्ट x इक्वल टू जी एक्स. तो क्वेश्चन है कि फाइंड रूट ऑफ x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशंस. ओके, फिक्स पॉइंट इटरेशंस या फिक्स पॉइंट मेथड.
So I am not putting any accuracy right now. We will put later on. So this is my fx, x minus cos x equals to 0. Okay. So we write it as, अब इसमें क्लियरली दिख ही रहा है ना, x इक्वल टू cos x लिख लो आप, लिख लिया मैंने x इक्वल टू cos x। अब इनिशियल गैस कैसे लेना है आपने? इनिशियल गैस जैसे मैंने पहले ग्राफ बनाया था, अब इसका बनाया था, तो आप x इनका ग्राफ बना लो जिसपे वो आपको लगे कि ये कट कर रहे हैं लगभग, या आप इसमें fx में फिट करते जाओ 0 1 2 3, आप इसमें फिट करते जाओ, आप इसमें 0 1 फिट करना, 0 1 में साइन चेंज कर जाएगा ये 0 1 में। तो आप 0 1 में कोई भी पॉइंट ले लो इनिशियल गैस, यू कैन टेक 0, you can take 1, you can take 1.5, you can take 0.5, you can take 0.7 and any point near that, okay? उसके नियर कोई भी पॉइंट ले लो आप। तो फर्स्टली आपने इसको लिखना है x इक्वल टू cos x, ये मेरा g है cos, so I am taking initial guess, take initial guess x0 equals to 1। तो पहला आंसर cos, अब 1 फिट कर दो, cos 1 निकाल दो, तो cos 1 रेडियन मोड में आता है 0.5403, ठीक है। सेकंड आंसर, अब इस पे cos लगा दो, इस पे 0.5403 पे, एंड दिस कम्स आउट 0.85755, फिर इस पे लगा दो cos, जो आंसर आया रेडियन मोड में, एंड दिस कम्स आउट 0.65429 एंड सो ऑन। आप लगाना मतलब cos ऑफ प्रीवियस नंबर करना है हमने जो x1 आया, जो आंसर आया x2 इक्वल टू cos ऑफ x1। हाँ, ये xn प्लस 1 इक्वल g ऑफ xn, तो राइट में पिछले वाला पॉइंट 1 फिट किया, ये आंसर आया। अब इस पॉइंट को फिट कर दो g के अंदर, है ना, g का cos ही है, cos लगा दो उसके ऊपर 0.540 पे, फिर 8 इस पे लगा दो, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा आपका, ये 10-15 बार करना पड़ेगा, 10-12 बार, तो कुछ पॉइंट के बाद क्या होगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा 0.73918। जब ये फिट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको हम कहेंगे, सो दिस पॉइंट x इक्वल टू 0.73918 इज ए फिक्स्ड पॉइंट। किसका फिक्स पॉइंट है? x इक्वल टू cos x का, and it is root of x minus cos x equals to 0। ठीक है जी। सर ये आगे वाला प्रोसीजर तो आसान ही है, पुट करना है, बट ये हर क्वेश्चन में क्या हम इस फॉर्म में कर पाएंगे उसको x इज हाँ, इक्वल टू जी एक्स में? मैं एक एग्जांपल और करने के बाद मैं थ्योरेटिकल पे आऊंगा, थ्योरी वाले पोर्शन पे, ठीक है, कि कैसे करना है हमने, ठीक है। राइट सर। Okay. बाकी अभी आप एक कंडीशन ये मानो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो कंडीशन ये कहती है कि जो आप g लिखोगे, अब g लिखना कई वे हैं, मैं अगले एग्जांपल में 3 वे में g लिखूंगा, तो कंडीशन अभी ये है, अभी मैं उसको करूंगा डिस्कस। वो कंडीशन ये कहती है कि डेरिवेटिव ऑफ g मस्ट बी लेस देन 1, वो g वर्क करेगा। तो आप देख लो cos, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? लास्ट लाइन लिखा है मैंने, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0.73918, दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ x इक्वल टू cos x। लिखने का अगले पे लिखूं, ओके सर। तो दिस इज और सर एक और चीज, इसमें वो कंडीशंस वैलिड रहेंगी जो कॉन्टिन्यूस और नेगेटिव पॉजिटिव वाली थी? कंटिन्यूटी सब में है, वो आप कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी सिर्फ, बस और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ओके गॉट इट। ओनली कंटिन्यूटी, वो सारे एक बार सर पीछे कर देंगे स्लाइड। continuity is required for in numerical analysis everywhere। और इसमें हाँ, बाकी साइन चेंज देखो, जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी थी वो तो वैलिड होगी ना, कि साइन चेंज तो होगा तभी रूट होगा, अगर साइन चेंज नहीं होगा फिर तो रूट ही नहीं होगा। और नेक्स्ट मेथड, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल हो गया यहाँ तक। लास्ट लाइन लिखा है 0.73918 इज, दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ x इक्वल टू cos x एंड इट इज द रूट ऑफ x माइनस cos x। तो डेरिवेटिव वाली कंडीशन में अभी डिस्कस करूंगा वैसे, बट cos है g, डेरिवेटिव क्या होगा, sin x होगा,
साइन एक्स हमेशा वो 1 से छोटा रहेगा रूट के आसपास में, मैक्सिमम 1 लेता है वैल्यू, वो 1 से एक्सीड कभी नहीं करेगा। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि रूट के नेबरहुड में, यानी कि ये रूट है अगर आपका, तो रूट के आसपास में थोड़ा लेफ्ट राइट में जो डेरिवेटिव है दैट मस्ट बी लेस देन 1, देन दैट जी कैन वर्क। और एक ही प्रॉब्लम में कई सारे जी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी हम एग्जाम्पल करेंगे लास्ट में एक। सो सेकंड एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक, दिस इज अ सिंपल जस्ट फाइंड √3 यूजिंग फिक्स पॉइंट मेथड। इसको आइट्रेशन क्यों बोलते हैं, कि मतलब आइट्रेशंस लेनी है, आपने पहले बोला था कर ना। रहे हो ना, ये सारे इटरेटिव मेथड ही हैं, बाइसेक्शन को भी इटरेटिव बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। तो ये नाम है, कई बुक्स इसको अच्छा फिक्स पॉइंट इटरेशन कह देते हैं, कई फिक्स पॉइंट मेथड कह देते हैं, ठीक है। सो बोथ आर द सेम थिंग। तो मेथड इज ठीक फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। वैसे ना फिक्स पॉइंट एक मैथ में कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह यूज होता है। तो यहाँ पे हम फिक्स पॉइंट को इटरेशन के सेंस में पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई समटाइम वी पुट द वर्ड इटरेशन आफ्टर फिक्स पॉइंट। सो फाइंड स्क्वायर रूट 3, तो कैसे प्रोसीड करें बताओ, व्हाट विल बी एफ, व्हाट इज एफ हियर, पहले तो एफ लिखोगे ना, जी तो बाद में आएगा। उसको सपोज कर लो √3 को रूट, यस सर। -3 इक्वल टू, दिस इज माय एफएक्स, √3 हटाना है आपने। फर्स्ट मेक नॉन लीनियर इक्वेशन एज वी डिड इन बाइसेक्शन। ये मेरी इक्वेशन है, आप साइन चेंज दे सकते हो, 0 और 1 में साइन चेंज करेगा, नहीं सॉरी 1 और 2 में साइन चेंज करेगा, और ये 1.73 होता है लगभग √3, तो ये साइन चेंज कर रहा है 1 और 2 के बीच में। सो यू कैन टेक एनी पॉइंट इनसाइड 1 and 2 एज इनिशियल गैस, यू कैन टेक 1, you can take 2, you can take 1.9 etc. So in this example I am writing 3 possibility of G. Okay, so possibility of Gx. So first possibility I am writing, making a claim, पहली पॉसिबिलिटी है कि x के -3 इक्वल टू 0 है, लिख सकते हैं ना, ये तो इक्वेशन है ही fx। अब दोनों साइड में x ऐड, यस सर। यहाँ आप उल्टा भी दोनों साइड x ऐड कर दो, सो x प्लस कर सकते हैं ऐड, तो ये बन गया x इक्वल टू जी, ये क्या था मेरा पहला g है, मैं सोच रहा हूँ g1, x इक्वल टू g1। सेकंड पॉसिबिलिटी, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3/x भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी, यस सर। सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ जी, ठीक है जी। थर्ड पॉसिबिलिटी इसी सेकंड से बना रहा हूँ आगे, x इक्वल टू 3/x तक तो लिखा था मैंने ये इसको, x इक्वल टू 3/x, दोनों साइड x ऐड कर दो, x ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 2x, इधर x प्लस 3/x, add x on both sides, divide with 2, this is my third g. Okay, so there are 3 possibility, now I am doing iteration, so I'm doing iteration in all, let us take initial guess, you can take any, I'm taking 2, 1.73 आंसर है, तो 1.73 के नियर कोई भी ले दो आप, 1 2 3 भी ले सकते हो, इट्स ओके। तो पहले मैं लिख रहा हूँ, आप लिखना तो काउंट लिख लो इनके n, ये इनिशियल x0 वाला है, तो सबको फर्स्ट पॉसिबिलिटी को, सेकंड पॉसिबिलिटी को, थर्ड को, तीनों को मैंने शुरू किया 2 2 से, ठीक है। फर्स्ट के आंसर लिखते हैं पहले, कैसे लिखोगे आंसर, क्या आंसर आएगा, इसमें फिट कर दो 2, सो 2 प्लस 2 स्क्वायर -3, कितना आंसर आया, 2 4 6 3 आ गया,
फिर 3 फिट कर दो, 3 + 3 स्क्वायर माइनस 3, सेकंड इटरेशन आंसर क्या है 9। फिर 9 फिट कर दो, x + x स्क्वायर माइनस 3, 9 + 9 स्क्वायर माइनस 3, तो 87। अब ये बढ़ने शुरू हो गए ना, तो इसका मतलब आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। आंसर क्या है आपका 1.73, और इनका डिफरेंस देखो दो कंजक्टिव का, 3 - 2 पहले 1 आ रहा है, फिर 9 - 3 6 आ रहा है, और 87 - 9, सो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना, कन्वर्जेंस तो मिलेगी नहीं फिर आपको। सो आई एम स्टॉपिंग आफ्टर 3, सो दिस इज, सो थर्ड पॉसिबिलिटी इज नॉट वैलिड। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी x = 3/x, तो 3/x 2 फिट करो, 3/2 1.5, या 3/2 लिख दो इसको। फिर 3/1.5, अब 1.5 क्या है, 3/2 ही है ये, तो ये 2 आ गया। तो 2 फिट करोगे 1.5, 1.5 फिट करोगे 2, ये रिपीट होता रहेगा 3/x में, तो आंसर मिलेगा आपको, दो वैल्यू रिपीट होंगी बस, तो ये भी वैलिड नहीं है। अब जो थर्ड आपको लग रहा था अनयूजुअल सा, ये वर्क करेगा देखना आप। तो थर्ड में फिट करोगे 1/2, ये था फार्मूला, 2 फिट किया 1/2, 2 + 3/2, ये निकालो कैलकुलेटर से 1.75 आ रहा है। फिर आप इसको फिट करो 1.75 को x की जगह, सो 1/2 1.75 + 3/1.75 in this formula. So this comes out exactly √3, 1.732413, और इसको फिट करोगे तो ये और भी इंप्रूव हो जाएगा आंसर 32051। So third one is working. Okay, so what is your answer? So √3 is approximately this value, last वाला आंसर जो है, and it comes from third possibility. So you can see by solving one equation there are many possibility to write g, and some are working, some are not working, but in this example only third possibility is working. हाँ जी बच्चे, हर्षित बोलो। सर यहाँ पे आपने ये पहले इनिशियल गैस x ≠ = 2 लिया है ना, हाँ जी हाँ जी, और फिर सर इसके यहाँ से एक बार समझा देंगे इस बात इनिशियल से? गैस देखो 3 पॉसिबिलिटी लिखी है, ये समझ गए ना, g1 g2 g3 3 यस सर। पॉसिबिलिटी, सब में इनिशियल गैस सेम लिया है मैंने 2, तो पहली पॉसिबिलिटी में 2 फिट करो यहाँ पे, 2 + 2 स्क्वायर, तो ये आंसर 3 आ गया फर्स्ट जी में। फिर 3 को फिट कर दो तो आंसर 9 आ गया, 9 फिट कर दो तो आंसर 87 आ गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। यस सर। ये बढ़ते जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना आंसर आपके, तो ये वर्क नहीं कर रहा। यस सर। अब सेकंड में फिट करो, सेम ही फिट कर रहे हैं, 2 फिट किया 3/2 1.5, 3/1.5 फिर 2 आ जाएगा, इसमें दो वैल्यू रिपीट होंगी, 2 1.5 2 1.5, तो ना तो 2 यस √3 है ना 1.5 √3 है, तो ये तो वर्क, ये भी वर्क नहीं कर रही, ये ऑसिलेट। ओके सर। अब थर्ड में फिट करो, थर्ड ये थी 1/2 x + 3/x, 2 फिट करो x को पहले, सर लास्ट वैल्यू आती जाए जो सर लास्ट वैल्यू आएगी उसी को उसमें पुट करते जाए फिर से। को फिट करते हैं x = gx, ओके सर। तो ये आपका आंसर मिल गया। तो अभी इनका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे, आंसर वही है, आप चेक कर लो फर्स्ट पॉसिबिलिटी डेरिवेटिव ऑफ g करके देखो, फर्स्ट g ये था x + x² - 3, व्हाट इज डेरिवेटिव 1 + 2x 1 + 2x 1 + 2x, तो रूट क्या है 1.73, तो 1.73 के लिए डेरिवेटिव क्या है 1 + समथिंग, तो डेरिवेटिव बड़ा है 1 से, तो ये पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। अब थर्ड को चेक कर लो आप, थर्ड वाला डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, थर्ड वाले का 1/2 x का 1 - 3/x², तो ये 1 माइनस कर दिया ना इसने, तो ये 1 से छोटा होगा, तो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी वर्क करेगी। मतलब अगर हम g of x डेरिवेटिव ले और वो लेस देन 1 आए तो मोस्ट प्रोबेबली उसके हिसाब से ज्यादा, इस हिसाब से वो वर्क करेगा, और ये डेरिवेटिव 1 से छोटा क्यों होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ये उसी से एरर से ही और सर हाँ जी बोलो बोलो। सर इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया अपन ने थर्ड पे रोका है, वो उससे पता चलेगा ना सर, xn + 1 - xn जो आपने वो लिखवाया लोग था अभी। माइनस करते जाओ, अब देखो ये ऑलमोस्ट मैच ही हो गए ना, ये देखो 1.732 1.73 तो डिजिट मैच, 4 डिजिट मैच हो रहे हैं, इट्स ओके है ना। अब जिसमें ठीक है। वर्क करेगा मेथड, आप देखोगे जो आंसर होंगे आगे आगे मैच करते जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अब जिसमें नहीं होगा, जैसे पहला आंसर था 2 3 9 8 तो आंसर दूर दूर एरर आपका बढ़ता जाएगा। तो ये डेरिवेटिव लेस देन 1 भी एरर से रिलेटेड है। अगर डेरिवेटिव 1 से बड़ा होगा तो आपकी एरर बढ़ती जाएंगी, अगर डेरिवेटिव 1 से छोटा होगा तो आपकी एरर डिक्रीज होती जाएगी। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एनी अदर डाउट? सर ये तो समझ लग गया। आप एक बार वो स्लाइड खोलेंगे जहाँ पे लिखा था आपने रिमार्क्स ऑन इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस, उसमें फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट था मैंने कि हम हाँ। अगर इक्वेशन मैंने लिया तो उसमें हम रैंडमली फिट करते हैं पॉइंट, -3 0 1 2 3 फिट कर देते हैं इधर नेगेटिव। देन ब्रैकेट द रूट मतलब? ब्रैकेट बाइसेक्शन में हम क्या करते हैं, एक जैसे मैं ए बी लेता हूँ तो इसको ए और बी के अंदर रूट है, तो अच्छा मतलब इस उसको, तरह ठीक है ठीक है ब्रैकेट ठीक है सर। हमने ब्रैकेट कर दिया रूट को ना, अच्छा अच्छा, ब्रैकेट अराउंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट वो नाम है। समझ गया जी, समझ गया। जिसमें जिस इंटरवल में रूट है उस इंटरवल को हम बोलते हैं कि ब्रैकेट द रूट इन दिस इंटरवल। ओके ठीक है। सर अभी आपने बाइसेक्शन क्वेश्चन जो कराया था, तो उसका एक बार वो वाली स्लाइड खोलेंगे। बाइसेक्शन की ये इससे प्रीवियस सर एक ये वाला 1/3 इससे पहले तो सर बस यही करना था, इस पे एक से नोट करना था।